that's great, बच्चों. Okay. So, I guess someone is traveling. The traffic noise is coming. Can you people please mute? Okay. All right. So as you all know, this is 24 Jan celebrated as the National Girl Child Day. And at Swasti Sukham, we are celebrating it over for a week. And today it's our really honor that, we are celebrating it with Govind Ballabh Pant University on empowering girls for a brighter tomorrow for this edition. Next slide, please. Okay. So the initiation of Home Science Program at Pantnagar was recommended by Mrs. Alice M. Fisher, USAIT, and Dr. Eldar Robb, University of Tennessee, USA in 1961. The College of Home Science was established on 15 July 1971 with an undergraduate program. In 1988, a 4-year degree program was started. In 2004, 4-year undergraduate degree program was revised to include 2+2 system that included 2 years of professional training in different disciplines of home science, that is apparel designing, interior designing and decoration, nutrition and dietetics, and organization and management of early childhood programs, which also included rural awareness, work experience, and in-plant training. In 2017, BSc Honors Community Science is started with 3 years of common coursework and 1 year of specialization. And Swasti Sukham Foundation is formed by one of your alumni, that is Dr. Archana Gupta. So Swasti Sukham Foundation is a national non-profit educational, charitable, and human service organization. It renders services and implements projects in more than 8 states across the country. It was founded on 19 October 2018 as a dream of Mrs. Gupta's father, because he wanted to give back something to the society. Her father, Dr. Subhash Chandra, Director Communication 2008, was also alumni of Govind Ballabh Pant University. Our organization is really happy to associate with our own Pantnagar and College of Home Science in different fields and builds capacity for self-employment, entrepreneurship, and community development. To tell you a few words about our founder, Mrs. Archana Gupta is graduated from College of Home Science, Govind Ballabh Pant University, and has done her master's in food and nutrition from the same college in the year 1993. She joined RD Women's College, Bhubaneswar in 2000 as a guest faculty. Having 18 years of experience in hospitality industry as a clinical nutritionist and diabetics educator, she is presently working as a HOD of Nutrition and Dietetics CLH Group of Hospitals in Vaishali, Ghaziabad. Having her own nutrition and wellness center and associated with many social organizations in Delhi NCR, she was doing a lot of work for the social welfare of the community. These are members of the foundation. That's Dr. Preeti Pant, Dr. Veena Chadda, Soni Gupta, myself, Swapnali Munim, Mrs. Sunita Sharma, Mrs. Madhubala Singh, Mrs. Ragini Chandel, Mrs. Poonam Mohan, Dr. Monica Gupta, Dr. Prem Lata Srivastav, and Mrs. Prasun Agarwal. The vision for our foundation, next slide please. Our foundation vision is to work towards building a healthier and resilient community by having a holistic and proactive approach of improvement in child nutrition, health, and education. We plan to improve the livelihood and the surrounding by enabling the care of Mother Earth. The mission is to be a knowledge-driven entity and be an execution partner for schools, NGOs, corporates, and government agencies, development of communities across India and abroad, and to ensure that everyone gets a happy, healthy life. The area of work so far has been in the fields of menstrual health and hygiene, nutrition, naturopathy, yoga, and meditation, counseling and training programs, Save the Nature, that is our Go Green initiative, social awareness, preservation of culture and perspectives, promotion of local languages, and special care for the needs of differently abled people.
Can you go to the next slide? So keeping that context in mind, we have been celebrating a National Girl Child Week, in which we covered various topics regarding the personality development through lifespan, menstrual health and hygiene, significance of Indian culture, elimination of cervical cancer, which was our yesterday's edition, and it was really very nice to, it broken a lot of myths which we had about cancer. Then we had something, edition on law and female rights. And then tomorrow is going to be our concluding program, which is on the celebrations of India. Now I would request Mrs. Archana Gupta to please come forward and share a few words. Thanks a lot, Swapnali, for such a wonderful introduction. On behalf of our college foundation, I, Archana Gupta, extend a very sincere warm welcome to all of you present here for national webinar on empowering girls for a brighter tomorrow. On the occasion of National Girl Child Week and Golden Jubilee celebration of College of Home Science, organized by Department of Human Development and Family Studies, Pantnagar, and Swasti Sukham Foundation at Pan-India level, we are proud to be an alumni of Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, which has been established in 1960 as the first agriculture university of the nation. Today, we are privileged to have our first student of the College of Home Science, Veena Didi, with us as well to celebrate the Golden Jubilee celebration with all of you. Yeah. Sure. Our first student, Veena Didi. Yes, hello. Hello, everyone. Yeah, hello, Didi. Welcome to you all. Really, really nice to have you. So, I also want to extend a note of thank you to our guest of honor, Dr. Alka Goyal, Professor and Dean Home Science College, for accepting our functions, invitation, and association with Swasti Sukham Foundation. She is PhD scholar, PhD in fiber technology, and recipient of National Fellow Award from ICR and Shiksha Ratna Puraskar, and many others. She has many publications, international journal of repute. Alka ma'am is always very supportive. Since 1987, I knew her in organizing any type of exhibitions, workshops, or interactive sessions to motivate all of us. A few months back in September during COVID time, we have also organized a national webinar on diabetes with Food and Nutrition Department of our College of Home Science and doctors of Lady Harding Medical College, Delhi. And it is really our pleasure. We are really privileged to have our Dr. Alka ma'am with us. So, not talking too much, I will not take the time, and I invite our esteemed and eminent madam, Dr. Alka Goyal, to declare the session open. Yeah. Okay, thank you. Welcome. I declare this session open. Yeah, please, ma'am, share something about. Okay. So I would just like to say something. First of all, I would like to welcome our very dear and honored Dr. Madam Bhatia. And Madam, I remember your first name only. I am still Bhatia, Bhatia Chadha. Yeah, Chadha. And our very dear Dr. and respectable Dr. Archana Raj Singh, I welcome you, and also to all the other colleagues from the College of Home Science and also from the Swasti Sukham side. Archana, especially you being my student, so I really feel good whenever I see you like these places. So just I would like to say something regarding the girl child, why we are going to have this session. That is, everybody knows that National Girl Child Day, that is celebrated on January 24th every year. And this was started in the year 2008 by the Ministry of Women and Child Development. So why to this requirement is there, why to celebrate, why to think about girl child? That is very important question with us. That is, the girls, we say, they have already believed to be a burden on the family from older times. This is what generally learned from, and their existence in Indian societies has always been questioned. So
Being a victim of gender inequality, girl is still in a sin in many uh, lesser known rural districts in India that is considered like. So, and even today, if they don't want to marry, but they have to manage the family. And very important is they are kept absent from the schools studies, and because of this they have to shoulder the family responsibilities. They are deprived of basic education to which they deserve. But now in today's time there has been awareness raised in our societies to see such atrocities against girls, and to get rid of all these uh, ill treatments against the girls, initiative of celebrating National Girl Child Day was led. So, as per Michelle Obama, she has said that girls know that education is the only path to self-sufficiency. It is their only chance to shape their own fate rather than having the limits of their lives that is dictated by others. So don't let anybody else to dictate you. Rather, you need to educate yourself and accordingly go for your life. Then the purpose of this day, I think must be very much clear to everybody. Not to everybody, but especially to the speakers and the organizer side, but to the students, I would like to say that to, to spread awareness about the gender-based discriminations that girls face in our society, and to bring change in the attitude towards girls. So this day is celebrated. Along with this, day is marked by various events and campaigns on Save the Girl Child, child sex ratio, and creating a healthy and safe environment for every girl child. Figure nine, 890 per day. The, to decline the decline in the child sex development. Therefore, it is very important that the National Girl Child Day on January 24th. This is the headlines of today's uh, this news, that is in Uttarakhand. The Heritage girl Srishti Goswami will become the Chief Minister of Uttarakhand for one day. She will administer from the summer capital of the state, that is Gairsand, and will review various schemes. Triveni Singh Rawat, our Honorable Chief Minister of Uttarakhand. These schemes include Atal Ayushman scheme, smart city homestay scheme by the tourism department, and other development projects. So it is very much clear to us that how much important this the government is also going ahead to give their due to the women. Main objectives, you know, that to eliminate all the inequalities faced by girls all over India, and to raise the consciousness of people and offer new opportunities to the girl child in the society. And the objectives focus on that the girl child should get all their deserving human rights. And third one is to target to remove gender discrimination and to educate women, which are still considered a taboo in our society. So whatever I have said, I can conclude it that today's day is celebrated first to save the girl child, second
for the child sex ratio, to improve the child sex ratio. That is, it should be almost equal towards equal. And third one, to create a healthy and safe environment for a girl child. And for this, to continue this, various campaigns are also being launched. And one of the very important campaign, that is the Beti Bachao Beti Padhao, that was launched by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. And this was launched on 22nd January 2015 in Haryana. And so this is so we can understand how much important it is to educate a daughter and to save her life. And many other campaigns are also going on with the by using different TV channels, local newspapers, radio stations, etc. Many NGO and other persons are also working to create awareness at ground level to educate girls and promote the gender equality. So I wish all the success to this program, and I wish that we must try to think, and we must educate everybody that proud one day. So please don't kill, let her live. This is what I want to convey. Thank you so much. Thank you. Archana, please. Thank you very much, ma'am, for such a wonderful words. Today is again I am feeling some problem in the network is there. So sorry for to everyone. And because of that also, we have actually prepared just a very short clip for you, ma'am. I want to show you. Really wonderful, yeah, ma'am. Thank you very much for such a nice word. So girls, everyone should consider all the points, see how we can grow, how we can manage our life. Okay? Preeti? So, let me go. Sorry. Thank you, Dee. So now I invite Dr. Archana Rasing Didi. Preeti, continue with Dr. Archana Didi. Thanks, Archana, and your NGO who inspired me, and college, Reena Bhatia, and all the students and all the members. Hello, Dee, आपकी आवाज इको कर रहा है. Dr. Archana Rasing Didi is from BSc from Pandnagar 1972-76, and she did MSc in 1976 to 1978 from MSU Baroda. Joined Rajasthan Agricultural University in 1979. Worked there till 2016. Retired as professor PhD from Rajasthan Agricultural University Bikaner, and in 1998 as a professor. Have 37 years research extension and teaching, and she was also Dean College of Home Science, Bikaner. So I invite Dr. Archana Didi. Please throw some light on the significance of girl child. Thank you, Preeti. Thanks, Archana, and thanks the team, and I thank Alka Goyal, Veena Didi, and all others for watching it. And मेरे को बोला कि मैं हिंदी में बोलूं, तो मैं आप सबको हिंदी में ही बात करूंगी. सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, बता नहीं सकते कि बेटियों के कितने रूप हैं, बता नहीं सकते बेटियों के कितने रूप हैं, बस ये समझ लो सर्द मौसम में सुहानी सी धूप है. बेटे माँ बाप को सड़क तक ले जाते हैं, और बेटे माँ बाप को सड़क तक ले जाते हैं. सड़क को जो जमीन पर लाए हैं वो है बेटियां. आज मेरे सामने
ने अपना गर्ल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस कर रहे हैं, तो उससे पहले मैंने कहा बेटियों के बारे में थोड़ा बोल लिया जाए तो अच्छा है। अब हमारा जो है सिग्निफिकेंट, हमारे ने देखा है कि प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं डॉक्टर रितु, कैन वी हैव अ प्रेजेंटेशन Okay, just wait, ma'am. या मैम वी आर शेयरिंग योर प्रेजेंटेशन दीदी। हत्या और कुछ अन्य, हालांकि वो प्रेजेंटेशन को ले लेना। बेटी आंगन की चिड़िया है, बेटी त्याग और संपूर्ण सिखाती है, बेटी नए नए रिश्ते बनाती है, बेटी जिस घर जाए जाना है, बेटी बार बार याद आती है, बेटी बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, बेटी बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो, बेटी बचेगी सृष्टि रचेगी। हालांकि लड़कियां कई क्षेत्रों में लड़कों से आगे हैं, लेकिन फिर भी लोग लड़के वाले बच्चे को पसंद करते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों ने हर क्षेत्र में खुद को बेहतर साबित किया है और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण वे अंतरिक्ष में भी गई हैं। वे परिवार और अपने जीवन के लिए अधिक प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और जिम्मेदार हैं। इसके अलावा लड़कियां अपने माता पिता के प्रति अधिक देखभाल और प्यार करती हैं। सबसे बढ़कर वे हर काम में 100% देती हैं। लड़की को बचाने के लिए पहला कदम हमारे अपने घर से शुरू होना चाहिए। हमें अपने परिवार, अपने घर से के सदस्यों, पड़ोसी, दोस्तों, रिश्तेदारों को उन्हें बचाने और अन्य लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक लड़की को एक ऐसे जीवन की हकदार है जहां उसे एक लड़के के बराबर माना जाना चाहिए और दूसरों को की तरह प्यार और सम्मान दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 11 अक्टूबर के दिन ही विश्व बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को जागरूक बनाना है कि समाज में जितना हक एक और अधिकार एक लड़की को मिलता, उतना ही हक और अधिकार लड़कियों को भी है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि लड़कियों पर हो रहे अत्याचार में कमी लाई जाए और पुरुष प्रधान समाज में लड़कियों को उनके अधिकार, उन्हें बराबर का दर्जा दिलाया जा सके। हमारे देश भारत में 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। किसी भी देश को सफल बनाने के लिए बालिकाओं का भी कदम से कदम मिलाकर चलना आवश्यक है। उसको देखते हुए हमारे भारत सरकार ने, इससे पहले एक बोल दूं, घर की सब चहल पहल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी, कभी धूप गुनगुनाती सुहानी, कभी चंदा शीतल है बेटी, शिक्षा गुण संस्कार दो फिर बेटी से सबल है बेटी, सहारा दो हर विश्वास का तो पावन गंगा जल है बेटी, प्रकृति के सद्गुण सींचो तो प्रकृति से निश्चल है बेटी, क्यों डरते हो पैदा करने से, अरे आने दो कल की है पदम बेटी। अब हमारे भारत सरकार में कई केंद्रीय सरकार की और कई राज्य सरकार की स्कीमें हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और ये 2015 में शुरू हुई थी 22 जनवरी को, और ये उल्लेखनीय योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना है जो सक्रिय रूप से लड़की को बचाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। मूल रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को गिरते हुए बाल लिंग अनुपात और महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए अन्य मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से शुरू की गई है। लिंग आधारित भेदभाव और उन्मूलन को दूर करने की मदद करना, बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, उनकी भागीदारी को सक्षम करना। योजना के लिए योग्यता जो होती है, इसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए योग्य होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जिसमें जिस परिवार में 10 वर्ष के कम की आयु वाली बालिका हो, बालिकाओं के नाम पर खोले गए किसी बैंक
में एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट होना चाहिए, बालिका भारतीय होनी चाहिए। ये योजना पहले उन जिलों में शुरू की गई थी जहां में लिंग अनुपात कम था। और उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है, जो सरकार द्वारा समर्पित एक बचत योजना है, जो बालिकाओं के लाभ के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा ही है। जैसे मैंने कहा कि उनकी अकाउंट होना चाहिए, तो यानी कि पहले अकाउंट होगा तभी वो आती हैं। इस 10 साल से कम की उम्र की बालिकाओं के माता पिता द्वारा चुना जा सकता है। माता पिता बालिकाओं के लिए इस तरह 2 खाते खोल सकते हैं। अगर 2 से अधिक बालिका हैं, तीसरी अगर उनके 2 लड़कियां हैं तो 2 खाते हो सकते हैं, पर अगर तीसरी और चौथी लड़की है तो उनका खाता नहीं खुलता। इन खातों को समय अवधि 21 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के बालिकाओं के विवाह होने तक की होती है। इसमें लाभ क्या मिलता है? नेक्स्ट इसमें लाभ मिलता है जो कि हमारा आयकर धारा 80C के तहत सालाना, और इस स्कीम में हाइलाइट्स थे कि इसमें 500 रुपए पर मंथ इनकी ट्यूशन फीस का रिलैक्सेशन था, और उस लड़की का जो है 10th में के एग्जाम में 60% मार्क्स आने चाहिए। ये आगे कर दीजिएगा, बहुत आगे चली गई हूँ इससे मैं। और उसकी स्कूल फीस शुड नॉट बी मोर देन 1500 रुपए पर मंथ से ज्यादा उसकी स्कूल फीस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। इस स्कीम को, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल स्कीम है जो कि इंसेंटिव देती है। उसमें क्या है, ये मई 2008 में शुरू हुई थी। ये जो है एनरोलमेंट उन बच्चियों को जो 14 से 18 साल की लड़कियां होती थी, उनको स्पेशली जो कि 8th पास है, उनको सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए ये वाली योजना शुरू की गई थी, और ये मोस्टली बैकवर्ड क्लास के लिए की गई थी। अब अगर हम देखें हमारे यहाँ जो है ये तो हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसमें थी। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर हम अपना 3rd या 4th स्लाइड खोलें, उसमें सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना। ये अलग अलग राज्यों ने अपनी अलग अलग स्कीमें खोली थी। तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। कर्नाटक में भाग्यश्री स्कीम शुरू की थी। माझी कन्या भाग्यश्री स्कीम जो थी, ये महाराष्ट्र में शुरू की थी। ममता स्कीम गोवा में शुरू की थी, और कन्या प्रकल्प जो थी वे वेस्ट बंगाल में हुई थी। सरस्वती बाइकिल सप्लाई स्कीम जो थी छत्तीसगढ़ में हुई थी, और रूपाश्री प्रकल्प जो थी वेस्ट बंगाल में हुई थी। और राष्ट्रीय योजना हमारे जो थी राजस्थान में शुरू हुई, और गर्ल चाइल्ड प्रमोशन की जो स्कीम थी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। और लाडली योजना जो थी, ये जहाँ पे लिंग अनुपात कम था, हरियाणा और दिल्ली में शुरू हुई। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इसका नाम उन्होंने रख दिया था मुख्यमंत्री लाडली योजना, और बिहार में भी इसका नाम इसी तरीके से मुख्यमंत्री लाडली योजना था। तो ये स्कीमें जो थी हमारी शुरू हुई थी। एक धन राशि योजना थी जो 2008 में लॉन्च हुई थी, और कम आय वाले परिवारों के लिए ये थी। लाडली लक्ष्मी योजना जो है, ये बालिकाओं के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। राज्य सरकार बालिका के रूप के बाद, जन्म के बाद उसके नाम 6,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदती है। 5 वर्षों तक जारी रखती है, जब तक कि कुल राशि 30,000 नहीं हो जाती। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड बालिकाओं को पदोन्नत होने पर निश्चित राशि मिलती है। इसमें कक्षा 6 में 2,000 रुपए,
9वीं कक्षा में 4,000 रुपए, 11वीं और 12वीं में 6,000 मिलते हैं। लड़की को 12वीं कक्षा तक 11वीं के बाद उसकी शिक्षा वर्ष में रुपए 2,000 हर महीने और रुपए 4,400 रुपए अतिरिक्त उसे मिलते हैं। यदि लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले नहीं हुई तो 21 वर्ष तक की आयु तक पहुंचने पर उसे 1 लाख रुपए तक मिलता है। लाडली योजना 2005 में शुरू हुई थी और 5 साल तक प्रति वर्ष इसमें 5,000 रुपए मिलते थे। तो ये हमारे योजनाएं रही जो कि हमारे सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, और इससे जो है हमारे गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन में उन्हें बचाने के लिए भी और उनके एजुकेशन के लिए भी हमारे को रूप में ली जा रही हैं, और इसका अधिक से अधिक लाभ हर जगह उठाया जा रहा है। और इससे एनजीओज भी जो है इस पे काम कर रहे हैं, जिससे कि वो लड़कियां ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें और काम कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दीदी। जस्ट थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यूज एंड वो एक्चुअली डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, उधर से हो नहीं पा रही थी। रियली वेरी सॉरी फॉर। मैं अपने बोलती गई, मैंने सोचा आपका होता जा रहा था, मैं अपना बोलती गई। इसलिए मैं एक्चुअली कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। इट्स रियली वंडरफुल सेशन एंड आई थिंक गर्ल्स को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं लड़कियां, ऐसा हमारे साथ अर्चना राज सिंह दीदी हैं, और आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने आप को एक एक करके अनम्यूट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लीज एनीवन कैन आस्क एनी टाइप ऑफ स्कीम्स जो दीदी ने बताए। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इससे हटके अगर कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम मैं अभी 6th क्लास में हूँ, तो अभी मैं इनमें से कौन सी स्कीम मतलब यूज कर सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ जो आपने अभी बताई है? क्या बोला, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। जोर से बोलो बेटा। मैम मैं ये कह रही थी कि मैं अभी 6th क्लास में हूँ, तो मैं अभी इनमें से कौन सी स्कीम ले सकती हूँ? आप 6th क्लास में हैं, आप कौन सी स्कीम ले सकते हैं? तो आपको बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ में आप तो 10 साल का वो है ना। आप इसमें सीबीएसई की स्कीम ले सकते हो अगर सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हो तो। यस मैम, मैं सीबीएसई में ही पढ़ रही हूँ। हाँ, तो सीबीएसई वाली स्कीम आप ले सकते हो। ओके मैम। है ना, सीबीएसई वाली स्कीम आपको मिल जाएगी बेटा। ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स? कोई भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहे, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं। एनीवन? सो ओपन सेशन। हम लोग यहाँ सिर्फ लेक्चर देने के लिए नहीं आज इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं इट्स अ वेरी इनफॉर्मल सेशन, तो आप लोग कंफर्टेबल जोन में आकर के सभी स्टूडेंट्स। मैंने इसीलिए पूछा था कि इंग्लिश, मुझे था कि कुछ ऐसे एनजीओ से, क्योंकि एनजीओ है तो इनके ऐसे भी लोग होंगे टारगेट ग्रुप जिनको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, तो मेरे को हिंदी में बोलूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू फॉर वेरी मच दीदी, आपने हम लोगों की बात को समझा। कोई भी पूछना चाहते हैं? एनीवन, एनी पार्टिसिपेंट, एनी ऑडियंस फ्रॉम? गुड इवनिंग मैम। या मैम जो स्कीम्स है सिर्फ सारी लड़कियों के लिए होंगे, मतलब सिर्फ रूरल्स के लिए या फिर सबके लिए कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इनमें? ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए स्कीम्स हैं, सिर्फ रूरल के ये नहीं है कि रूरल के लिए ही है। बस एक ही स्कीम जो मैंने आपको बताई जो बैकवर्ड क्लास के लिए, अदरवाइज और सारी स्कीम्स जो हैं वो सबके लिए हैं। बैकवर्ड क्लास के लिए नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो बैकवर्ड क्लास के लिए नहीं, तो और सारी स्कीम सभी लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर के लिए है। ओके मैम, थैंक यू मैम। So, shall we go further? Didi, thank you very much for sparing your
valuable time, and we are really privileged to have you with us. And now our next speaker is Dr. Ritu Singh. Good evening, ma'am. Need education चाह रहे हैं कुछ पूछना चाह रहे हैं प्लीज अगर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए अदरवाइज थैंक यू प्रीति so now I invite our next speaker Dr. Ritu Singh. She's really a wonderful lady. Since just within a few days we met through the phone only, and she is Associate Professor Human Development and Family Studies at GV Pant University of Agriculture and Technology, Uttarakhand, India. Her main area of research is early childhood care and education, adolescent development, and family studies. In the light of contemporary social and psychological issues, she has 80 research papers to her credit, of which 9 research papers are conferred with Best Research Papers National Awards, as well as 5 international fellowships. She is an editor board of 6 reputed international journals and serves as a scientific counselor for national, international committees. So we welcome Dr. Ritu. She's really going to explain you everything about the lifespan and development of your womanhood. A very good evening. Am I audible to all? Yes. Yes, ma'am. A very good evening to the respected dignitaries present in the webinar, as well as my beloved participants, especially the students who are attending this webinar from behalf of Swasti Sukham Foundation or our College of Home Science. Thanks, Archana Madam, for giving us this privilege to collaborate with you on this great occasion and celebrating this National Girl Child Day along with you. And thanks for the beautiful introduction. So without wasting too much of time, I would like you to take you all in the journey of personality development. And here I start sharing my presentation. So is my screen visible? Yes, ma'am. Still, personality development through lifespan. इसका मतलब है पर्सनालिटी मैडम नेक्स्ट स्क्रीन कर दें पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू लाइफ स्पैन इसका मतलब है आपका व्यक्तित्व पूरे जीवन कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व पूरे जीवन कैसा है वो आपकी पहचान बनाता है तो यदि हम कहते हैं पर्सनालिटी व्यक्तित्व तो पर्सनालिटी क्या होता है अगर मैंने शब्द बोला कि हाँ भाई हम क्यों कल्पना चावला को जानते हैं क्योंकि उनकी एक पर्सनालिटी थी क्यों हम इंदिरा गांधी को जानते हैं उनका एक ऑरा था या कोई बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जिसको अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड्स मिलते हैं स्मिता पाटिल प्रियंका चोपड़ा उनका एक ऑरा है उनका एक पर्सनालिटी है जो और सारी महिलाओं से उन्हें उनके क्षेत्र में अलग करता है तो पर्सनालिटी क्या है पर्सनालिटी एक इन टोटल साइकोफिजिकल सिस्टम है मतलब आपका शरीर आपकी सोच पूरा जो आप ओवरऑल हैं वो आपके पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है आपकी पर्सनालिटी आपका व्यक्तित्व सिर्फ आपके कपड़े से नहीं है आपके बोलने से नहीं है आपके चलने से नहीं है बट ओवरऑल पैकेज आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है आपका बॉडी बिहेवियर कैसा है आपका बॉडी फंक्शनिंग कैसी है आपकी माइंड फंक्शनिंग कैसी है तो पर्सनालिटी उसका एक रिफ्लेक्शन है और आप ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी क्या है वो आपको दूसरे से यूनिक करती है वो आपको एक व्यक्तित्व को दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से अलग करती है डेवलपमेंट क्या है अगर हम पर्सनालिटी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो डेवलपमेंट क्या है कि किस तरीके से पैदा होने के बाद एक एक पल आपका व्यक्तित्व
आप जिस वातावरण में पैदा हुए हैं उसके अनुरूप ढलता जाता है। तो क्या हुआ? पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व विकास, कि आप किस वातावरण में पैदा हुए हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन टोटल देखें तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके सोच और आपके व्यवहार का प्रतिबिंब है, जो आपको एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करता है। तो पर्सनालिटी कैसे बनती है? पर्सनालिटी बनती है 3 कंपोनेंट्स से, 3 चीजों से। आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। टेम्परामेंट का मतलब है जो आप जन्म से जेनेटिकली आपको कुछ कुछ बेसिक ट्रेट्स मिले होते हैं, उन ट्रेट्स से जब एक बच्चा जन्म लेता है वो अपने वातावरण को अपने उन ट्रेट्स के नजर से देखता है और अपने उन ट्रेट्स को, अपने उन चिन्हों को यूज करते हुए इस संसार को देखता है। टेम्परामेंट, जैसे किसी का गुस्सैल टेम्परामेंट है, किसी का बहुत सॉफ्ट टेम्परामेंट है, किसी को बहुत क्रिटिकल हर चीज में कमी निकाल लेने का टेम्परामेंट है, किसी को हर बहुत भारी चीज को हल्के से देखने का टेम्परामेंट है। तो ये बेसिकली क्या है? ये अधिकतर आपका खुद का जेनेटिक कैरेक्टर होता है। जब आप पैदा होते हैं आपके अपने क्रोमोसोम्स और जेनेटिक चीजें होती हैं जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर को, आपके टेम्परामेंट को, आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाती है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? इमोशनल, कॉग्निटिव या बिहेवियरल पैटर्न्स, मतलब जो आपकी सोच जब आपके व्यवहार में व्यवहारिक रूप से दिखती है वो आपका कैरेक्टर बनाती है। और वो व्यवहार में कैसे दिखती है? जीवन से लेकर मृत्यु तक आप किस तरीके के एक्सपीरियंसेस को ले रहे हैं, किस तरीके से आप संसार से चीजें पा रहे हैं, आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, आपके साथ क्या क्या हुआ है, ये सब आपके कैरेक्टर को बनाता है। तीसरी चीज जो पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को डिफाइन करती है वो एनवायरनमेंट। हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जन्मे हैं। आपका एनवायरनमेंट, एक गरीब बच्चा जो गरीबी में पैदा हुआ, जिसके पास एक्सपोजर नहीं था, जिसके पास खेलने के लिए महंगे महंगे या चीजों को सीखने के लिए महंगी महंगी चीजें नहीं थी, उसका व्यक्तित्व अलग होगा। और वो जो पहले ही पैदा हुआ और बिल्कुल जैसे कहते हैं सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, माँ बाप इतने अमीर हैं, उसके पास सारे सुख सुविधा हैं, उसका व्यक्तित्व अलग होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्तित्व आपको बचपन में, जो वातावरण, एनवायरनमेंट आपको बचपन में मिल गया वही आपके जीवन भर का व्यक्तित्व बनाएगा। वो आपका फाउंडेशन, आपका बेस तो होता है, बट जैसे जैसे जीवन में आपका वातावरण बदलता रहता है, आपका व्यक्तित्व बदलता रहता है। आप गरीबी में पैदा हुए, आपने बहुत मेहनत करी, आपने अपने आप इतने काबिल बने कि आपने अपने आसपास का वातावरण बदल दिया, तो आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। तो व्यक्तित्व क्या है? बेसिकली 3 चीजों का, टेम्परामेंट, कैरेक्टर और एनवायरनमेंट का समागम है। यही 3 चीजें मिलके एक इंसान के व्यक्तित्व की पहचान बनते हैं और एक इंसान को, पहले इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ये व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं, पर बात यह है कि इस व्यक्तित्व विकास का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है कि हम आज इस वक्त नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य पे, सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य पे, या नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक सेलिब्रेशन के दौरान इसकी बात कर रहे हैं। सिर्फ बेटी पैदा हो जाने से, बेटी को पढ़ा लेने से, बेटी को स्कीम्स और प्रोविजंस दे देने से मकसद नहीं सॉल्व होता। जब हम बेटी की बात करते हैं तो मतलब है हम चाहते हैं वो बेटी जो दुर्गा के रूप में दिखे, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में दिखे, या किसी एक बहुत ग्रेट लीडर के रूप में दिखे, या एक ग्रेट सिंगर के रूप में दिखे।
उस चीज के लिए हमारा प्रयास है। और स्वास्थ्य सुखम फाउंडेशन या हमारा विभाग जो मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन विभाग है, वो इस तरफ प्रयासरत है कि हम सिर्फ बेटी जन्मे और बेटी को उसके अधिकार मिले उसके लिए नहीं, हम उसके लिए काम करेंगे कि उसका एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल व्यक्तित्व हो कि वो अपने इस दुनिया में, इस संसार में अपनी पहचान बना सके। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसकी जरूरत है? उसकी जरूरत ये है, जब आपका व्यक्तित्व प्रखर होगा तो आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकेंगे। आपके व्यक्तित्व में यदि मैच्योरिटी होगी, सोचने समझने का अच्छा विवेक होगा, तो आप जीवन के हर रूप को, हर रंग को बहुत अच्छे से संभाल सकेंगे। आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, आप खेल में भी अच्छे होंगे। अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं है कि हाँ आप हर जगह बहुत ही रिकॉग्नाइज होंगे, बट आप बैलेंस कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि जब आपका व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता है तो आप हमेशा हमेशा ऊंचाई की तरफ ही बढ़ते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व अच्छा बन रहा है तो आपको आसमान को छूने की काबिलियत बढ़ती है। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा तो आप चीजों को संभालने की क्षमता रखेंगे। आपकी लाइफ में, जिंदगी में एक ही साथ बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। कई लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी लड़कियां होती हैं जो एक समय एक ही काम कर पाती हैं, बट अगर आपके व्यक्तित्व को अच्छा डायरेक्शन मिला, आपको अच्छा एक्सपोजर मिला, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिली, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी बनेगी कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ अच्छे से करने के लिए सक्षम होंगे, मतलब बेटर मैनेजमेंट होगा। उसके अलावा यदि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो आपके अपने आप अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आपके अपना आप एक कम्युनिकेशन, संवाद करने की बहुत अच्छा टैलेंट होगा। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि उनको स्टेज फ्राइट होती है, वो स्टेज पे नहीं जा सकते। उनको लिखना बहुत अच्छा आता है, बट अगर मैडम कहते हैं बेटा आओ क्लास में ये एक शो कर दो या थोड़ा एंकरिंग कर दो, तो वो कांपने लगते हैं। टीचर को बहुत कहना पड़ता है नहीं बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, बट नहीं कर पाता। तो वो क्या है, वो व्यक्तित्व की कमी है, उस व्यक्तित्व विकास की कमी है। यदि आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, आपको एक्सपोजर मिलेगा, तो आपका व्यक्तित्व बहुत ही क्या कहते हैं, चमकता और उज्जवल होगा, जिसकी वजह से आपको, आप जहां खड़े होंगे आपकी पहचान बनेगी, और वो पहचान आपको एक कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ जब भी कोई टीचर पूछेगा अच्छा ये काम कौन करेगा, स्टेज पे कौन आएगा, तो आप हाथ उठाएंगे और आप कहेंगे मैं ये प्रेजेंटेशन दूंगा या मैं क्लास में ये काम करूंगा। आपका व्यक्तित्व विकास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक आप में एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग डालता है। आपका व्यक्तित्व यदि हर कोई आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है, तो आपको ये लगता है कि हाँ मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ करूं, मुझे लोग वैल्यू देते हैं, मैं लोगों के लिए महत्वपूर्ण हूं। यदि आपके व्यक्तित्व में अगर रोचकता नहीं है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपका व्यक्तित्व में कमी होगी, तो आप हमेशा समाज से, दुनिया से भागने की कोशिश करेंगे। और व्यक्तित्व विकास, इन सब चीजों को लेते हुए एक लड़की का व्यक्तित्व विकास उस खुद के लिए और इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम भले ही जेंडर में कहते हैं कि 1000 पे 966 गर्ल्स पैदा हो रही हैं, या इतने लड़कों पे, इतने पुरुषों पे इतनी महिलाएं हैं, बट मेरा मानना है कि 10 महिला, एक महिला, इससे कोई मैटर नहीं करता। यदि एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व की महिला है तो वो 10 पुरुषों पे भारी पड़ती है, 10 क्या 100 पुरुषों पे भारी पड़ती है। इसलिए यदि एक भी लड़की व्यक्तित्व में बहुत प्रखर होगी तो क्या करेगी, ना सिर्फ अपना जीवन का उद्धार करेगी, बट अपने से जुड़े हुए माता पिता, अपने से जुड़े हुए पति, अपने से जुड़े हुए रिश्तेदार, अपने से जुड़े हुए बच्चे, सबके जीवन में निखार लेके आएगी। क्योंकि माँ, एक महिला ही या एक लड़की ही पहली गुरु होती है। ठीक है, तो ये है व्यक्तित्व विकास की इंपॉर्टेंस, और क्यों सिर्फ एक लड़की के जन्म लेने और ये गवर्नमेंट की स्कीम इस्तेमाल करने की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट उसके एक बहुत ही
प्रखर व्यक्तित्व के होने की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब व्यक्तित्व विकास की जब बात हुई, तो जब हम आज व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। व्यक्तित्व को आज नहीं, बहुत सालों सदियों से बहुत महत्वता दी जा रही है, बट इस पे बहुत काम हुआ। कितने लोग वैज्ञानिक थे, जो सामाजिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यक्तित्व विकास पे एक पूरी पूरी थ्योरी डेवलप कर दी। सबसे पहले व्यक्तित्व विकास की थ्योरी जो है, एक सिगमंड फ्रॉइड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पे चर्चा करी। उनकी अपनी एक सोच थी, उन्होंने एक साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी, बट वो थ्योरी के बहुत लोग क्रिटिसाइज करने वाले निकले। बहुतों ने कहा नहीं, उनकी थ्योरी गलत है, ऐसे व्यक्तित्व विकास नहीं होता। कई लोगों ने कहा नहीं, अच्छी है, हाँ हम मानते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा वो ऐसे है। पर दूसरे एक वैज्ञानिक आए, एरिक एरिक्सन, जिन्हें हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मतलब वो विकास के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विकास से संबंधित, व्यक्तित्व विकास से संबंधित थ्योरी दी, जिसे साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। एरिक एरिक्सन ने 1950 में ये साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी, जिसमें उन्होंने जन्म से मृत्यु तक किस तरीके से एक व्यक्ति में पुरुष महिला दोनों है, बट जब मैं यहां बात करूंगी, मेरा रेफरेंस सिर्फ महिला के लिए है कि आपको समझना है कैसे जन्म से ही आपके व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है, मृत्यु तक आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो उन्होंने पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्तित्व के विकास की बात करी, और उसमें उन्होंने जो सामाजिक सोशल नेचर है, मतलब जो आपके आसपास का समाज है, वो कितना महत्वपूर्ण है, वो किस तरीके से आपके व्यक्तित्व का विकास करता है, उस पे चर्चा करी, उस पे थ्योरी लिखी। उसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। तो एरिक एरिक्सन ने क्या कहा कि उन्होंने जन्म से मृत्यु तक 8 स्टेजेस में, चरणों में व्यक्तित्व विकास की परिभाषा दी। उन्होंने ये कहा कि हर एक स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहचान है। यदि उस स्टेज पे आपने वो पहचान हासिल कर ली, तो आप विकास के अगले पड़ाव, व्यक्तित्व विकास के अगले पड़ाव पे जाते हैं। आप में एक अलग तरीके से प्रखर व्यक्तित्व आता है। आप जिंदगी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुनर को सीखते हैं। पर यदि आप एक चरण पे, जिस समय आपको जिस तरीके के व्यक्तित्व का हासिल कर लेना था, यदि नहीं कर पाते हैं, तो आप उसी जीवन के चरण पे, उसी व्यक्तित्व विकास के चरण पर ठहर जाते हैं, और एक बहुत ही आपके व्यक्तित्व में एक निगेटिव तरीके का इम्पैक्ट आता है, विकार आता है, जिसकी वजह से आप प्रखर रूप से सामने नहीं आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये है थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन। अब इसमें हम डिटेल पे बात करेंगे। इसमें यह है कि जैसे मैंने कहा, उन्होंने 8 स्टेजेस दिए, जन्म से मृत्यु तक 8 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला स्टेज इन्फेंसी का, इन्फेंसी मतलब जन्म से 18 महीने के बच्चे को इन्फेंट या शिशु कहते हैं। एरिक एरिक्सन के हिसाब से जन्म से 18 महीने मतलब 1.5 साल तक के बच्चे में ट्रस्ट या मिसट्रस्ट के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है। एक तरीके का ऐसा द्वंद्व चलता है कि किस तरीके का उसको वातावरण मिलेगा जन्म से 1.5 साल तक, कि उसके व्यक्तित्व में विश्वास करना आएगा या अविश्वास आएगा, मतलब ट्रस्ट आएगा या मिसट्रस्ट आएगा, और कौन सी चीजें हैं जो उसके, कौन सा माता पिता या कोई भी केयर गिवर है, उसका कौन सा व्यवहार है जो उसके इस व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वो है फीडिंग। क्योंकि 1 से 1.5 साल तक के बच्चे में कोई और चीज करने की क्षमता नहीं है। वो जो संसार है उसको सिर्फ कुछ ही माध्यम से उसके साथ रिलेट करता है। उसकी बेसिक नीड्स पूरी होना, खाना हो मिल गया, पानी मिल गया, सोना हो गया, शुशु पॉटी कर ली,
और उसको अगर कोई दर्द तकलीफ हुआ कंफर्ट, तो उसका संसार से सिर्फ इतना ही संबंध होता है अपनी बेसिक नीड्स पूरे होने का। तो एरिक एरिक्सन ने ये कहा कि यदि बच्चे के जन्म से 1.5 साल तक उसकी हर बेसिक नीड को पूरा किया गया, वो जब भूखा हुआ तो खाना दिया गया, जब वो रोया तो उसे प्यार किया गया, जब वो डरा तो उसे संभाला गया, अगर उसकी हर उस समय की जरूरत को पूरा किया गया, तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के द्वंद्व के बीच में, मतलब विश्वास और अविश्वास के बीच के द्वंद्व में वो विश्वास लाता है अपने व्यक्तित्व में। कैसे विश्वास लाता है? उसको ये लगता है कि हाँ, जब मेरे पास मुझे जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, तो मेरा जो भी पालन करने वाला है वो मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो उसमें विश्वास भावना जगती है। यदि बच्चा रोता है और जो कोई भी दादी, मम्मी, पापा, कोई नौकरानी अगर उसकी उस चीज को नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं, या कभी देख लेते हैं कभी छोड़ देते हैं, तो उसका समाज के प्रति, संसार के प्रति, जीवन के प्रति अविश्वास जगता है। मतलब जन्म से 1.5 साल 18 महीने शिशु अवस्था में बच्चे की जरूरतों को जब हर समय, हर पल, तुरंत अटेंड किया जाता है, देखा जाता है, तो उसमें विश्वास की भावना जगती है। और जब उसकी चीजों को, जरूरतों को इग्नोर करके कभी कर दिया जाता है, कभी नहीं, तो उसका संसार में, रिश्तों से, जीवन से एक अविश्वास की भावना जगती है। तो इस तरीके से जन्म से 1.5 साल तक में ही विश्वास और अविश्वास व्यक्तित्व में आ चुके होते हैं, और वो लड़की में विश्वास आएगा या अविश्वास आएगा, ये उसके परिवार के जो सदस्य उसका ध्यान रखते हैं उसके प्रति व्यवहार पे डिपेंड करता है। दूसरा व्यक्तित्व विकास का चरण है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 3 लिखा है, मतलब 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे में आता है। 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट का द्वंद्व आता है। व्यक्तित्व में इन दो में से किसी एक चीज का आना होता है। ऑटोनॉमी मतलब स्वच्छंदता से कुछ कर पाने की क्षमता, या हीनता कि आपको शर्म आ रही है या आपको डाउट है अपने पे कि आप कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। 1.5 साल से 3 साल अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो शुरुआती बाल्यावस्था है, उसमें आप अपने व्यक्तित्व में इस चीज का बीज रोप देते हैं। या तो आप में स्वच्छंदता आ जाती है कि हाँ, आप इंडिपेंडेंटली, निर्भरता से, आत्मनिर्भरता से कुछ कर सकते हैं, या आप में एक तरीके की शर्म, झिझक या शंका आ जाती है। वो कैसे होती है? उस समय का बच्चा जो है, टॉयलेट ट्रेनिंग या खुद कपड़े पहनने की, यही कुछ उसकी बेसिक जरूरतें हैं जो सीख पाता है। 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे को हम खुद से कैसे टॉयलेट जाते हैं, बताते हैं कि मुझे पॉटी लगी है, मुझे शूशू लगी है, टॉयलेट में जाते हैं, खुद अनड्रेस होते हैं, करते हैं कपड़े, इन चीजों में मदद करने से उसमें इस तरीके का व्यक्तित्व आता है। जब जितनी बार उसको टॉयलेट महसूस होता है, वो बताता है कि हाँ टॉयलेट लगी है, टॉयलेट जाना है, उसकी मदद की जाती है, तो उसमें एक सिर्फ मदद की जाती है, उसके लिए किया नहीं जाता, तो उसमें आत्मनिर्भरता आती है। यदि इसी की जगह उल्टा, यदि बच्चे ने शूशू कर दी, पॉटी कर दी, बच्चा शायद बताने में देर कर गया या गलती से नहीं बता पाया और आपने उसको जलील कर दिया, आपने उसको ये कहा तुम तो हम बहुत ही बेकार बच्चे हो, तुम तो ड्रेस में पॉटी शूशू कर देते हो, तुम ये कर देते हो, तुम्हें टॉयलेट भी करने नहीं आता है, तुम गंदगी फैलाते हो, इस तरीके से, तो उसमें अपने आप में हीनता और शंका आती है कि क्या वो खुद कभी कुछ कर पाएगा या माता पिता ही करेंगे। तो आपके व्यक्तित्व में जो आप बड़े होकर के अपने में देखते हो, एक तरीके का आत्मनिर्भर होना, एक तरीके की अपनी इंडिपेंडेंट सोच होना या हीनता होना, उसके बीच
1.5 साल से 3 साल में ही रोपे जा चुके होते हैं, आपके परिवार के द्वारा, आपके समाज ने आपका साथ कैसा व्यवहार किया उसके द्वारा। अगर आपकी हर फिजिकल नीड पे, आपके हर उस चीज को जो आप खुद करना चाहते हो, यदि माता पिता ने उसे प्रोत्साहित किया और आपसे कहा हाँ हाँ आप करो, हम पीछे खड़े हैं, तो आप बिल्कुल स्वच्छंद होगे, आप आत्मनिर्भर होगे। और यदि आपके थोड़ा से भी उस कार्य को गलत तरीके से करने पे आपको डांटा जाता है, जलील कि तुम खाना कम खाते हो, गिराते जाता हो, या तुम गंदगी फैलाते हो, तो आप में शेम और डाउट आता है। फिर तीसरी चरण व्यक्तित्व विकास का है 3 से 5 साल की उम्र में, जिसे हम प्री स्कूल कहते हैं, प्री स्कूल एज ग्रुप कहते हैं। जब आप स्कूल से पहले की उम्र, जब फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जाते, उस समय आपके व्यक्तित्व में इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, मतलब आपका हर चीज खुद आगे बढ़ के करने का व्यक्तित्व आएगा, या आप में हर चीज के लिए एक तरीके का अफसोस आएगा। उसका बीज 3 से 5 साल में, जब आप प्री स्कूल एज ग्रुप में होते हो, जब आप पहली से नीचे की कक्षा में होते हो, उसी समय बीज रोप दिया जाता है। वो बीज कैसे रोपा जाता है? आप किस तरीके का आपको चीजों को करने की मौका दिया जाता है, आपको किस तरीके से खेलने का मौका दिया जाता है, क्या आपको चीजें दे करके ये कहा जाता है हाँ ठीक है दे दिया, अपने आप देखो तुम इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। क्या आपके सामने कोई चीज रख दी जाती है और छोड़ दिया जाता है कि हाँ कोशिश करो देखो इसका क्या बना सकते हो। यदि आपको इस तरीके का वातावरण मिलता है, तो मतलब आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि तुम खुद कोशिश करो कि तुम इसमें क्या कर सकते हो। और यदि हर चीज आपके आगे बना के रख के दे दी गई कि ऐसे बनना है, तो मतलब कि आप नहीं कर सकते, आपको वो मौका नहीं दिया गया, आपको ये माना गया आप नहीं कर सकते, हम आपके लिए कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक आप इनिशिएटिव ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, या आप अपने आप को कम समझते हो, इसका बीज रोपा जा चुका होता है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माता पिता और समाज का रोल होता है कि वो बच्चे को कुछ कुछ चीजों के साथ खुला छोड़ दें, बस पीछे सुरक्षा के भाव से, चाहे माता पिता हो, चाहे तुम एक बड़ी बहनें हो, तुमसे अगर कोई छोटा भाई बहन हो या छोटी बहन हो, तो आप में भी, हर लड़की में किसी भी उम्र की है, एक माँ का रूप होता है कि आप अपने छोटे भाई बहन को भी बहुत एक माँ की तरह प्यार करते हो, बड़ी बहन की तरह प्यार करते हो। तो इसमें आपका भी रोल है, ये नहीं कि ये तो हमारी माता पिता का रोल है, इसमें आपका भी अपने से छोटे के प्रति रोल है कि आप उसको मौका दो कि वो बच्चा खुद अपने आप हर चीज को करके देखने का प्रयास करे। उसके लिए हर चीज उसे करके मत दो, उसको कहो आप, या उसके सामने चीजें दो कि वो खुद करे, और जब वो करे तो उसको अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो, जैसे उसे आगे बढ़ के करने की इच्छा हो। यदि उसके आगे बढ़ के कुछ करने पे गलती हुई और आपने डांट दिया, डपट दिया, तो अगली बार अपने आप आगे बढ़ के आने की कोशिश नहीं करेगा। अगला चरण है 6 से 11 साल का, जो हम स्कूल एज का कहते हैं। वो व्यक्तित्व विकास का एक इंपॉर्टेंट चरण है, जिस समय इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी आता है। ये व्यक्तित्व के बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आप अपने जीवन में लाते हैं। इंडस्ट्री या इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री मतलब कोई भी चीज को काम कर पाने में एक अलग हुनर, और इंफीरियोरिटी मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स है कि आप कुछ अच्छा सा नहीं कर सकते हो। इसे करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज हैं, जैसे तुम्हारे स्कूल टीचर्स, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पालनहार्ता जो भी हैं, वो तुम्हारे को जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसमें यदि तुम कर रहे हो, नई चीजों को कर रहे हो और आपको अच्छे से करने दिया जा रहा है, आप सक्सेस पाओ ना पाओ, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, तो आप में एक अचीवमेंट की खुशी होती है कि हाँ मैंने अचीव किया, मैंने अपने आप किया, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। यदि मैंने आपकी सक्सेस, आपके प्रयास को छोड़ के आपने क्या गलत किया उस पर फोकस किया, तो आप में एक कॉम्प्लेक्स आता है। जैसे कई टीचर्स कहते हैं तुम रहने दो,
तुम्हारे बस का नहीं है, तुम आओ सामने, तुम बहुत अच्छा करते हो। तो क्या हुआ, आपके अंदर एक तरीके से इंफीरियरिटी का बीज रोपा गया। तो जब 6 से 11 साल के होते हैं तो व्यक्तित्व में या तो आप में ऐसा माहौल मिलेगा कि आप में एक इस तरीके की भाव आएगी कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं और मैं जो करूंगा अच्छा करूंगा, या आपको ऐसा माहौल मिलेगा कि आपको लगेगा नहीं मैं जो भी करता हूं सब खराब करता हूं, मुझे डांट ही पड़ती है। तो ये व्यक्तित्व विकास का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है 6 से 11 साल। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने अभी 6 से 11 साल 12 साल बात करी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में आए, किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में। जब हम किशोरावस्था में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व का हम एक पहलू अपने जीवन में लेके आते हैं, वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन मतलब किशोरावस्था में आप अपनी पहचान बना रहे होते हो, मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, दुनिया क्या करती है, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो आप अपनी पहचान बना रहे होते हो, आपकी पहचान बन रही होती है, और इस समय आपके जीवन में आपके मित्रगण, आपके स्कूल फ्रेंड्स, आपके अड़ोसी पड़ोसी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप क्या करते हो, आपके दोस्तों से, आपके आस पड़ोस से आपको किस तरीके का प्रेरणा मिल रही है, वो प्रेरणा आपके व्यक्तित्व को डिफाइन करती है। यदि आप अच्छे ग्रुप में रहते हो तो आपको अच्छे बनने की और अच्छा करने की प्रेरणा आती है। आप ये सोचते हो अच्छा लोग ऐसा भी अच्छा करते हैं, मुझे ऐसा करना है। तो आप अपने आप में अच्छा व्यक्तित्व धारण करने की कोशिश करते हो। और यदि आप ऐसे ग्रुप में होते हो, ऐसे माहौल में होते हो जहां पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आता है मुझे क्या करना है। जैसे एडोलेसेंस में 12 से 18 में कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता मुझे 10वीं में क्या सब्जेक्ट लेने हैं, 12वीं में क्या सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस समय समाज का, आपके रिश्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपके सामने एक अच्छी प्रेरणा लाएं, आपको अच्छे एनवायरनमेंट दें कि आपको इंस्पिरेशन मिले। बट उसमें आपका भी इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार आपके माता पिता, आपके स्कूल टीचर्स बहुत कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी प्रेरणा मिले, बट आपकी खुद की चॉइस किधर लेके जाती है, कुसंगत में या सुसंगत में। तो आपकी कुसंगत या सुसंगत आपको डिफाइन करती है, आपके व्यक्तित्व को बनाती है कि आप एक अच्छा व्यक्तित्व पाएंगे, पहचान पाएंगे, या आप कंफ्यूज्ड ही रह जाएंगे। 12वीं पार कर ली पर अभी तक नहीं पता, 10वीं पार कर ली, 8वीं अभी तक नहीं पता हमें क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आप यंग एडल्टहुड में आते हैं, मतलब युवा 19 से 40 साल। इस उम्र में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आपके व्यक्तित्व में इसका विकास होता है। इंटीमेसी मतलब लगाव, चूंकि आप एडोलेसेंस से यंग एडल्टहुड युवा बन गए हैं, आप लड़की हैं, कोई लड़का है, लड़की और लड़के का ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना बहुत लाजमी है। यही वो उम्र है जब गवर्नमेंट भी आपको शादी के लिए लीगल करती है। तो मतलब इस समय आपको इस उम्र में जो ऑपोजिट जेंडर है उसके साथ एक प्रेम भावना और ग्रुप में रहने की फीलिंग आती है। यदि आपको इस समय कोई इंसान आपके ऑपोजिट जेंडर का या कोई चीज आपको लगाव देता है, आपसे अट्रैक्ट होता है, तो आप में बहुत प्रेम का भाव आता है। यदि ऑपोजिट जेंडर का कोई भी इंसान या ग्रुप के लोग जो है आपको रिजेक्ट करते हैं, तो आप क्या होते हो, आइसोलेट होते रहते हो, आप अपने आप को समाज से, आप अपने आप को दूसरों से अलग करने लगते हो। तो इस उम्र में आपके ऑपोजिट जेंडर का, आप महिला हो तो पुरुष, पुरुष हो तो महिला का क्या ग्रुप का रिएक्शन है आपके प्रति, वो आपके बिहेवियर को, आपके व्यक्तित्व को डेवलप करता है। कुछ बच्चे, लड़कियां या लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें उनके ऑपोजिट जेंडर के लोग बहुत पसंद करते हैं। चाहे बच्चे इस एज में इमेच्योर होते हैं, वो लुक्स पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बशर्ते आपकी
इनर ब्यूटी के। तो क्या होता है, जब कोई ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो आप में एक इंटीमेसी आती है। जब कुछ लोगों को रिजेक्ट किया जाता है तो उनमें आइसोलेशन आता है, मतलब वो अपने आप को समाज से, दोस्तों से अलग रखना चाहते हैं। तो जिनमें लगाव आता है वो परिवार की शुरुआत करते हैं, और जिनमें लगाव नहीं आता है वो परिवार की शुरुआत तो करते हैं बट उनमें विकार रहता है और उनके रिश्तों में भी हमेशा मनमुटाव और खटास रहती है। उसके बाद नेक्स्ट चरण है जो सातवां चरण है, वो 40 to 65 ईयर्स पे है, जो मिडिल एडल्टहुड है। वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मतलब आप इस उम्र में कम से कम 40 से 65 में माता पिता बन चुके होते हैं। इसमें आपका क्या रोल है? आपका रोल है, आपने अपने आप को बना लिया बट आपके आगे जो है अब आपको सब कुछ उसके लिए करना है, उसके लिए पैदा करना है, उसके लिए जनरेट मतलब पैदा करना है। मतलब मैं अपने बच्चे, यदि 40 साल में हूं, मेरा बच्चा हो चुका है, मुझे उसके लिए कमाना है, मुझे उसके लिए खाना बनाना है, मुझे उसके लिए घर बनाना है, मुझे। तो क्या हुआ, मेरे व्यक्तित्व में देने की भावना आई। उससे पहले तक लेने की, मैं क्या करने आया हूं, मैंने क्या करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर 40 साल तक जनरली एवरेज में आपकी फैमिली शुरू हो चुकी होती है, आपके परिवार में बच्चे आ चुके होते हैं और तब आपकी देने की भावना शुरू होती है। तो आपको इस आपके व्यक्तित्व में ये दो चीजें आती हैं, या तो आप में देने की भावना आती है या आप स्टैग्नेट कर जाते हो। स्टैग्नेट कैसे करते हो? कुछ लोग होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उन्हें आगे देने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं होती अपने आगे की जनरेशन को कुछ सिखाने की। पर इसका मतलब ये नहीं है वो सब जिनके आगे बच्चे नहीं हैं उन्हें सिखाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं दूसरों में भी अपने बच्चे देख लेते हैं और वो मानते हैं यही मेरे आगे के भविष्य है और वो उन्हें देते हैं। तो और जो लोग ये नहीं मानते, उनकी आगे की जनरेशन को देने को कुछ नहीं होता, तो स्टैग्नेट कर जाते हैं और वहीं से फ्रस्ट्रेशन और कॉम्प्लेक्स शुरू होता है। जीवन का आखिरी पड़ाव होता है 65 साल से मृत्यु तक का। 65 साल से मृत्यु तक का बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है, जब आपने जीवन की ऑलमोस्ट सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। आप बिल्कुल मतलब 65 साल में, अब हिंदुस्तान में रहते हुए तो ऑलमोस्ट सबकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। बच्चे हैं तो शादी कर दी, उन्हें सेटल करवा दिया, उनकी लाइफ स्टैब्लिश कर दी। उस समय आपका व्यक्तित्व में आता है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मतलब अब आप शांति से बैठते और पीछे देखते हैं कि 65 साल के जीवन में आपने क्या किया, आप ये करना चाहते थे, क्या आपने सब कुछ कर लिया? यदि आपने जो जो चाहा था अपने लिए करना, अपने बच्चों के लिए करना, यदि आप पीछे बैठ के देखते हैं और आप सब कुछ कर चुके होते हैं, तो आप में एक अलग संतोष, आप में एक अलग आत्मतृप्ति होती है। और यदि नहीं होता है तो आपको एक तरीके से बहुत ही विचलित होते हो कि मैं क्या हो जाए, जीवन बदल जाए, मुझे वापस वो मौका और समय मिल जाए। तो इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक हर आगे बढ़ते हुए में आपके व्यक्तित्व में चीजें जुड़ती जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, कई बार ये व्यक्तित्व के जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो पहले अचीव कर लेते हैं यदि वो बहुत मैच्योर हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही आगे बढ़ते हो, ऐसे ही आपके व्यक्तित्व में चीजें जुड़ती जाती हैं, समझ जुड़ती जाती है। यदि आपको अच्छा समाज, अच्छा माहौल, अच्छे भाव मिलते हैं तो आप व्यक्तित्व के अच्छी चीजों को उठाते हो, और यदि आपको बुरे भाव, बुरा माहौल, बुरी चीजें मिलती हैं तो आप व्यक्तित्व की निगेटिव चीजों को उठाते हो। तो मैंने ये चीज जो आपको थ्योरी इसलिए बताई सिर्फ ये समझने के लिए कि आप जितना जी चुके हैं वो आपके बस में नहीं है, बट आपके नीचे जो है उस पे अभी भी आपका कंट्रोल है और आपके आगे जो है उस पे अभी भी आपका कंट्रोल है। आप अभी किशोरावस्था में नहीं घुसे या घुस गए तो आप डिसाइड करेंगे आपके दोस्त कैसे होंगे, आपके दोस्त कैसे होंगे वो डिसाइड करेगा कि आपका व्यक्तित्व और आपका भविष्य कैसा होगा। आप ही अपने व्यक्तित्व के निर्माण करता हो। आपको सिर्फ हम लोग यहाँ पे बैठ के दिशा दिखा सकते हैं, करने वाले आप हो। इसलिए आपका ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लड़की होने की जो क्षमता होती है उससे भी समझना कि कैसे कुछ महिलाएं इतनी अच्छी दिखती हैं, इतनी
इतनी पॉपुलर होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। तो आप सबको बहुत ही मेहनत से काम करना है और बहुत लगन के साथ ऐसी ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करना है, ऐसी चीजों को अटेंड करना है और अपने दिमाग चक्षु खोलने हैं और अपनी दिशा पहचाननी है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, जैसे न सिर्फ आप अपना जीवन बल्कि अपने परिवार और अपने इस देश का जीवन सुधार सके। थैंक यू। ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अब इस पे अगर कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। थैंक यू मैम। मैम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को और हम सभी को समझाया कि जैसे कई बार है ना, हमारे बच्चे बोलते हैं कि मैं लड़की हूँ, या हम कई बार सोचते हैं बड़े होकर कि नहीं हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हम इसलिए इसके काबिल हैं, हम सक्षम हैं, और अगर हम सही तरीके से अपने आप को शुरू से पहले दिन से समझते हुए आगे बढ़ें और अपने बच्चों में वो चीजें उसी तरह से उनका डेवलपमेंट करें, तो देखिए बिल्कुल टोटल अलग ही पर्सनालिटी बन के आ जाती है। रियली बहुत ही अच्छा सेशन था मैम। मतलब मैं तो बिल्कुल ना चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ही पहुंच गई थी। आई वॉज फीलिंग कि वहां बैठ करके हम क्लासरूम में सुन रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से आपने बहुत ही प्यार से और बहुत ही बढ़िया समझाया। कोई पूछना चाहता है कोई भी, प्लीज मैम हमारे साथ है, आप लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी बच्चा कुछ भी पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। बहुत ही अच्छे से मैम ने समझाया है। और मैम आपकी सारे मन की जो है ना द्वंद, जो हम पिछले 5-6 दिनों से क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग कुछ शेयर करते हो मुझसे, तो आप मैम से पूछिए प्लीज। मैम विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर क्वेरीज। हाँ जी पूछिए। वत्सला आप पूछ रहे थे कुछ? रंजना जी? हाँ जी। तो नो क्वेश्चन मैम। एक्चुअली आपने इतना अच्छे से समझा दिया है ना कि बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हो गई है। और हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे और एक लंबा सेशन फिर से लेना चाहेंगे मैम, अगर आप थोड़ा सा हमें टाइम दे पाएंगी तो। बिल्कुल मैम। थैंक यू माय वेरी प्लेजर। या थैंक यू वेरी मच मैम। हम लोगों ने भी एक छोटी सी मैम पीपीटी तैयार की थी, जो शुरू में बिकॉज ऑफ सम रीजन नहीं चला पाए थे। अगर आप लोग अनुमति दें तो जस्ट 5 मिनट्स मैम लेंगे आप लोगों का। क्या हम वो पीपीटी शेयर कर सकते हैं? श्योर मैम, श्योर। ओके, थैंक यू मैम। स्वप्नाली, कैन वी हैव दैट पीपीटी? Good evening, ma'am. Sure, ma'am. थैंक यू। आप लोग अपने क्वेश्चन हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज। जस्ट लिटिल बिट लार्जर वन। Is it visible? Yes, thank you very much. So it's our college. Yes. पुरानी याद है। Yeah, please. So, अर्चना मैम एंड रितु मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था ये। I mean, बहुत सारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो आपने बताया, that was really amazing. मतलब इतना हम लोग सोचते नहीं है जो आपने बताया, it was मतलब eye opener था ये in a way. So thank you so much. So this time we are celebrating the National Girl Child Week, जो आप सब जानते हैं। National Girl Child Day is basically on 24 January. और आज हम लोग गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। So to give you a brief introduction about the university, the initiation of home science program at the Pantnagar was recommended by Mrs. Alice M. Fisher, USAIT, and Dr. Elda Robb, University of Tennessee, USA in 1961. The College of Home Science was established on 15 July 1971 with an undergraduate program. 1998 में 4 साल का degree program start किया गया. In 2004, 4-year undergraduate degree program was revised to include 2+2 system that included 2 years of professional training in different disciplines of home science, that is apparel designing, interior designing and decoration, nutrition and dietetics, and organization and management of early childhood programs, which also included rural awareness, work experience, and implant training. In 2017,
BSc Honors Community Science is started with 3 years of common coursework and 1 year of specialization. To talk about the Swasti Sukham Foundation, which is formed by our founder, Mrs. Archana Gupta. It's a national non-profit, educational, charitable, and human service organization. We render services and implement projects so far in more than 8 states across the country. It was founded on 9th October 2018, जो Dr. Archana Gupta के father का dream था, and she's living up to it. Her father, Dr. Subhash Chandra, was a director communication and also was an alumni of Govind Ballabh Pant University. Our organization is really happy to associate with our own Pantnagar College of Home Science in different fields and build capacity for self-employment, entrepreneurship, and community development. To tell you something about our founder, Mrs. Archana Gupta has graduated from College of Home Science, Govind Ballabh Pant University, and Masters in Food and Nutrition from the same college in 1993. She joined the RD Women's College, Bhubaneswar in 2000 as a guest faculty. She has over 18 years of experience in the hospitality industry as clinical nutritionist and diabetes educator. Presently, she is an HOD of Nutrition and Dietetics Department, St. CLH Group of Hospitals in Vaishali, Ghaziabad, having her own nutrition and wellness center and associated with many social organizations in Delhi NCR. This is our team, so which consists of Dr. Preeti Pant, Ms. Meena Chadda, Ms. Soni Gupta, myself, Swapnali Muneem, Ms. Sunita Sharma, Ms. Rajni Chandel, Ms. Madhubala Singh, Ms. Poonam Mohan, Dr. Monica Gupta, Dr. Premlata Srivastav, and Ms. Prasanna Agarwal. The vision of Swasti Sukham is to work towards building healthy and resilient communities by giving a holistic and proactive approach of improvement in child nutrition, health, and education, improving the livelihood and the surrounding by enabling the care of Mother Earth. The mission is to be a knowledge or an execution partner for schools, NGOs, corporates, and government agencies for the development of communities across India and abroad. And we ensure that everyone stays healthy and have a happy life. The area of work जिन fields में हमने अभी तक काम किया है वो है menstrual health and hygiene, nutrition, naturopathy, yoga, meditation, counseling and training programs, saving the nature, social awareness, preservation of culture, promotion of local language, and the special care for needs of differently abled people. Our work experiences, corporate offices, police force, hospital staff, university teachers and students, RWAs and many NGOs and school children of rural and urban population. Now during this COVID times, we are getting in touch with all of them through seminars, workshops, webinars, competition and one-to-one interactive sessions which are happening all online. So online lectures during COVID period on different topics, posters and drawing competition, of which आपको result आज या कल पता चलेगा during our concluding day. Blood donation camp, health checkup camps, tree plantation, donation drive, and also running a school and skill development program for underprivileged children and their family at Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh branch. I just want to show a small snippet of our doings so far. ये हम लोग ने rehabs के लिए किया था during the COVID times. This is how we are trying to, preserve our culture by promoting the handicrafts. Our initiative of planting trees to have a cleaner and a greener India. We donated homeopathic medicines during this COVID times. We helped towards building a self-reliant society. And of course, we believe in spreading joy and happiness amongst the underprivileged people. And we are doing this right now through seminars and webinars in this COVID pandemic times. So, thank you so much. That's what was from all. And now I would like to call upon Dr. Ragini Mishra, who's an assistant professor, Department of HD and Family Studies at Govind Ballabh Pant University, for a vote of thanks.
Dr. Ragini Mishra. Ma'am, there's some disturbance. Ma'am, I am audible. Ma'am, you're not audible. You are audible, but not clearly now. Now, Yeah, please go ahead, ma'am. Please go ahead. We try just is it okay now, ma'am? Yeah, you Yeah, just it's try. audible now. Yeah. Thank you so much, ma'am. Ragini ma'am, you can hear us? Nalin, ma'am. The day, all attendees of the webinar, it's my privilege to propose a speakers for the day and all the attendees of the webinar. It's my privilege to propose a vote of thanks on the behalf of Department of Human Development and Family Studies and my own self. I extend a hearty vote of thanks to our chief guest, Dr. Alka Goyal ma'am, Professor and Dean, College of Home Science, who spared time from her busy schedule to address the webinar. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us to organize such events in the future. I also extend my heartfelt thanks to the keynote speaker, Dr. Archana Raj Singh, retired Professor and Dean, College of Home Science, RAU, Bikaner, Rajasthan, for her explanations on significance of girl child and government provisions and schemes for girl child. In addition, we are grateful to another keynote speaker for the day, Dr. Ritu Singh, Associate Professor, Human Development and Family Studies, G.V. Pant University of Agriculture and Technology, for her views on the topic, personality development with special reference to the girl child, developmental psychological perspective, which is the need of the hour, especially in reference to the girl children. As we know, any event requires planning. Therefore, we would like to extend our vote of thanks to Dr. Archana Gupta, founder Swasti Sukham Foundation, who gave this idea to coordinate this event. Our sincere gratitude also goes to all attendees for their patience listening. Last but not the least, thanks to each one of you who helped in successful completion of this webinar. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity as well. Thank you, ma'am, and thank you to everyone.